صدر مشاعرہ محترم مولانا عبدالظفر احسان ندوی صاحب مجد اللہ العالی، مہمان خصوصی رکن پارلیمان برادرم ابو عاصم صاحب اعظمی، ناظم مشاعرہ جناب انور جلال پوری صاحب، شعراء کرام، معزز سامعین، میں انتہائی شکر گزار ہوں یونک اسپورٹس کلب کے نوجوان دوستوں، عہدیداروں اور ذمہ داروں کا، جنہوں نے ملٹی میڈیا اور سیٹلائٹ کلچر کے اس عہد میں جب ہماری خوابگاہیں بھی جاسوس نگاہوں کے نرغے میں ہیں، جلوت و خلوت کا فرق مٹتا جا رہا ہے، سیٹلائٹ دھنیں شاعری سے اس کی لطافت، لفظ و معنی سے ان کی رفاقت اور آتی جاتی سانسوں سے ان کی صداقت چھینتی جا رہی ہیں، انہوں نے شعراء اور سامعین کو روبرو بٹھا کر اس تہذیب کے احیاء کی کوشش کی ہے جو تہذیب بے پردگی سے نہیں، در پردہ گفتگو کی ادائے دلبری سے عبارت ہے۔ وہ تہذیب جو فکر اور فکرے کی برہنگی سے نہیں، لفظ اور لب و لہجے کی شائستگی سے عبارت ہے۔ وہ تہذیب جو غروب آفتاب کے ساتھ بڑھتی ہوئی تیرگی سے نہیں، طلوع آفتاب کے ساتھ نقاب رخ الٹتی ہوئی صبح کی دوشیزگی سے عبارت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف تو اردو اور اس کی تہذیب اور اس کی شاعری کے سحر میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حلقہ اثر بڑھتا جا رہا ہے۔ اردو کے شدید دشمنوں کی زبان سے بھی کبھی کبھی نکل جاتا ہے کہ دل کے لیے سکون کا پیغام بن گئی، بے چینیاں سمٹ کے تیرا نام بن گئی۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو اپنی تہذیب کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایسے نقلچی بھی پیدا ہو گئے ہیں جو مادری زبان میں تعلیم کو تعلیم کا نا کثر شان سمجھتے ہیں۔ حضرات، یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ اس کو بچانے کے لیے، اپنی تہذیب کو بچانے کے لیے، اپنی زبان کو بچانے کے لیے، اپنی متاع فکر کو بتانے کے لیے ہمیں کچھ کڑوے بھیڑ پینے کی ضرورت ہے، اور اس کڑوے بھیڑ کو پینے کے لیے اپنے مشاعرے کے مزاج کو بدلنا ہوگا۔ اگر مشاعرے کا مزاج نہیں بدلا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ اس کو ملیا میٹ ہو جانے کے لیے کسی سنگ پریوار، کسی نرسمہا راؤ، کسی کلیان سنگھ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اردو ہماری طرف انگلی اٹھا کر کہے گی کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ یہ ایک پوری تہذیبی روایت کی امین ہے، یہ ایک پوری تاریخ کی امین ہے، یہ ایک پوری تہذیبی روایت کی جلوہ گاہ ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ جلوہ گاہ ایک مکمل درسگاہ میں تبدیل ہو جائے، اور جو لوگ اس درسگاہ کو سجانے اور سنوارنے اور سجانے کا کام کرتے ہیں، خدا ان کے جنوں کا سلسلہ دراز تر کرے۔ شکریہ۔ شمیم طارق صاحب جو مشاعرے کا افتتاح کر رہے تھے، ان کے بعد میں عالی جناب انور جلال پوری صاحب کو زحمت دے رہا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور مشاعرے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ جناب انور جلال پوری۔ دوستو، اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیے۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے عہد حاضر کے ایک معتبر اور مستند دانشور نے ابھی اس مشاعرے کا افتتاح کیا اور ان کی افتتاحی تقریر کا کوئی اثر آپ کے اوپر نہیں پڑا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ کم سے کم ذاتی طور پر تو مہذب بن جائیے، اس لیے کہ ذاتی طور پر تو ہر شخص مہذب دکھائی پڑتا ہے، مگر اجتماعی طور پر اپنی تہذیب کا مظاہرہ کرنے کے لیے مشاعروں سے زیادہ
बेहतर कोई जलवागाह नहीं होती, तो कम से कम इज्तिमाई तौर पर अपनी तहजीब की हिफाजत करते हुए आप नज़र आएँ, ऐसा हमें महसूस होना चाहिए। आप बैठेंगे नहीं तो कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती, कोई शायरी नहीं हो सकती जब तक आप अपनी नशिस्तों पर बैठ नहीं जाते। मेरे दोस्त, मेरे भाई, उर्दू पर बड़ा बुरा वक्त है और इस बुरे वक्त को खूबसूरती में आप तब्दील कर सकते हैं। अपनी तहजीब के मुस्तकबिल की कहीं से किसी हिफाजत की एक किरण अगर आप दिखा सकते हैं तो आप ही हैं। तो मैं फिर एक बार अदब से आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपनी नशिस्तों पर बैठ जाइए। दाइस पर मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं आली मरतबत वाजिबुल एहतराम क़िबला अबू ज़फ़र हसन नदवी साहब, जिनकी शख्सियत ऐसी है कि मेरे लिए साल में एक मुलाकात हो जाती है तो मुझे ये महसूस होता है कि जैसे मेरी आँखें कुछ ज़्यादा पाकीज़ा हो गई हैं। वो डाइस पर तशरीफ़ रखते हैं, वो मुशायरे के सदर हैं। आली जनाब शमीम तारिक साहब की तकरीर आपने समाअत फरमाई। हमें फ़ख्र है कि हमारे हिंदुस्तान में दानिश्वरी की जो रिवायत है उसका अमानतदार एक शख्स बम्बई शहर में और महाराष्ट्र में है और लोगों को बता रहा है कि उर्दू में दानिश्वरी किस मंजिल और किस मनसब तक पहुंच चुकी है। उसकी नुमाइंदगी बिरादरम शमीम तारिक कर रहे हैं, जिनके मज़ामीन आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मोतबर रसालों में देखते होंगे, जिनकी किताबों पर नोट्स लिखना, तबसरा करना हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुबस्सिर और बड़े बड़े नाक़िद काबिल इफ्तिखार समझते हैं कि शमीम तारिक की तहरीरों पर उन्होंने कुछ लिख दिया है और जो लोग उनकी तहरीरों को पढ़ लेते हैं उनके इल्म में इजाफ़ा हो जाता है। वो भी हमारे डाइस पर हैं। मोहतरम नोमान साहब, जिनसे चंद बरसों से हम लोगों की मुलाकातें हैं, लेकिन हमने देखा कि एक ऐसा शख्स जो दुनियावी दौलत और वजाहत के साथ साथ तहजीब और अदब और इल्म की हिफाजत करने का जो जज्बा उस शख्स के दिल में है वो काबिल एहतराम है। अबू आसिम साहब के सीने में जो कौम और मिल्लत का दर्द है और उसके मुस्तकबिल को खूबसूरत बनाने का जो जज्बा है उसकी भी हम कदर करते हैं। ये शख्सियतें हमारे स्टेज पर हैं और तमाम शोराए किराम और शायरात। दोस्तों, एक बात मैं इस मुशायरे के तवस्सुल से अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारी हैसियत, हम उर्दू वाले जो हैं वो बर्र सगीर में इतनी बड़ी तादाद में है, बल्कि दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में है कि हमारा हर अमल आलमी तहजीब को मुतासिर करता है और आलमी तहजीब की निगाहें हमारे हर अमल को तनकीदी नज़र से देखने की कोशिश कर रही हैं। तो इस वक्त हमें ये साबित करना है कि हमारा अदब और हमारी शायरी जो है बारूद के ढेर पर बैठी हुई इस दुनिया को अमन का पैगाम देना जानती है। हमें ये भी साबित करना है कि जज्बातियत ने हमारी कौम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हम अदब के ज़रिए किसी तरह की जज्बातियत की बात नहीं करेंगे। हमें ये भी बताना है कि मुस्तकबिल के लिए अक्ल और शऊर की ज़रूरत है और शायरी के वसीले से अक्ल और शऊर को फैलाने की, उसे वसअत देने की हमें कोशिश करनी है। ये सारी जिम्मेदारियां इस वक्त नई नस्ल पर हैं और नई नस्ल पर ये भी जिम्मेदारी है कि इस वक्त आलमी तौर पर तहजीबों के तसादुम का जो एक खेल हो रहा है उसमें हमें अपनी तहजीब को हर तरह से महफूज रखना है। हमें बरहनगी से जंग करनी है, हमें इस्तेहसाल से लड़ना है और हमें जहालत के अंधेरों को दूर करना है। ये सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर एक शायर, एक अदीब, एक दानिश्वर की हैसियत से है। तो मैं आज इस मुशायरे के स्टेज से आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी शायरी दिलों को फतह करने का
हुनर फैलाने की कोशिश करेगी और ये जो दानिश्वर शख्सियतें हमारे डाइस पर हैं, इनकी गुफ्तगू से हम जो कुछ सीखेंगे या सीख रहे हैं उसे अपनी शायरी में भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने आज मुशायरों की तकरीर से हट करके कुछ गुफ्तगू इसलिए की है कि ज़रूरत इस बात की है कि हमारी ज़हनी तरबियत हो जानी चाहिए, हमारी ज़हनी सतह कुछ बुलंद होनी चाहिए। शायरी के वसीले से ऐसा माहौल शायरी के ज़रिए बनना चाहिए। मैं मुशायरे का आगाज़ करना चाहता हूँ। आपके बहुत ही महबूब और पसंदीदा शायर जनाब आसिफ अख्तर, जिन्होंने अपनी नई उम्र में लोगों के दिलों में घर बना लिया है, मैं उनसे इल्तिमास कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से इस खूबसूरत और तारीख़ी मुशायरे का आगाज़ कर दें। आसिफ अख्तर साहब का फ़िरोज़ाबाद से ताल्लुक़ है, आप उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, आपके महबूब शायर हैं। मैं जनाब आसिफ अख्तर से गुजारिश कर रहा हूँ। सामाईन हज़रात, गज़ल से पहले चंद कतार समाअत कीजिए। रोज़ नए उन्वान से साजिश होती है, रोज़ नए उन्वान से साजिश होती है। रोज़ मेरे ज़ख्मों की नुमाइश होती है। जिनके हाथों में ये सियासी मौसम है, जिनके हाथों में ये सियासी मौसम है, वो जब चाहे खून की बारिश होती है, वो जब चाहे खून की बारिश होती है। मौसम की तब्दीली से हैरान नहीं, हम कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं। मौसम की तब्दीली से हैरान नहीं, हम कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं। हमने पहाड़ों के सीनों को चीरा है, हमने पहाड़ों के सीनों को चीरा है। हमसे टकराना कोई आसान नहीं, हमसे टकराना कोई आसान नहीं। मौसम की तब्दीली से हैरान नहीं, हम कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं। हमने पहाड़ों के सीनों को चीरा है, हमने पहाड़ों के सीनों को चीरा है। हमसे टकराना कोई आसान नहीं। और तवज्जो चाहूँगा हज़रात आप सबकी। तहज़ीबो इख़लाक़ शराफ़त बेचाए, नफ़रत के बदले में मोहब्बत बेचाए। तहज़ीबो इख़लाक़ शराफ़त बेचाए, नफ़रत के बदले में मोहब्बत बेचाए। ये है वो दलाल सियासी मंडी के, ये है वो दलाल सियासी मंडी के। वक्त पड़े तो माँ की असमत बेचाए, वक्त पड़े तो माँ की असमत बेचाए। और देखें, तवज्जो चाहूँगा आप सब हज़रात की, थोड़ा सा जुड़ के चले मेरे साथ। आज नहीं होना तो कल हो जाएगा,
क्या कहने? ये बहता दरिया दलदल हो जाएगा, आज नहीं होना तो कल हो जाएगा। ये बहता दरिया दलदल हो जाएगा, अब के तूने छेड़ दिया तो याद रहे, अब के तूने छेड़ दिया तो याद रहे, मेरा दिल भी फिर पागल हो जाएगा, मेरा दिल भी फिर पागल हो जाएगा। और गजल का मतलब समाप्त कीजिए। हालत कराओ। कोई मौसम हो कभी लब नहीं खोला करते, कोई मौसम हो कभी लब नहीं खोला करते, कोई मौसम हो कभी लब नहीं खोला करते, फूल के सामने कांटे नहीं बोला करते। वाह, बहुत अच्छे। फूल के सामने कांटे नहीं बोला करते, फूल के सामने कांटे नहीं बोला करते, बदनीयत रूह फजाओं में फिरा करती है, बदनीयत रूह फजाओं में फिरा करती है, बदनीयत रूह फजाओं में फिरा करती है, चांदनी रात में तन्हा नहीं डोला करते, चांदनी रात में तन्हा नहीं डोला करते, जल चढ़ा दो या कीदत से इन्हें बोसे दो। क्या तवज्जो चाहूंगा आप हजरात की, थोड़ी देर के लिए जुड़ जाएं हजरात। हाँ, जल चढ़ा दो या कीदत से इन्हें बोसे दो, जल चढ़ा दो या कीदत से इन्हें बोसे दो, ये हकीकत है कि पत्थर नहीं बोला करते। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हकीकत है कि पत्थर नहीं बोला करते, जब उड़ेंगे तो कफस साथ में ले जाएंगे, 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 बस यही सोच के हम पर नहीं तोला करते। अच्छे, वाह वाह। बस यही सोच के हम पर नहीं तोला करते, और जब उड़ेंगे तो कफस साथ में ले जाएंगे, बस यही सोच के हम पर नहीं तोला करते। वाह वाह वाह। और गजल का आखिरी शेर समाप्त कीजिए। लाख धुलवा दो इन्हें सोने के पानी में, मगर तवज्जो चाहूंगा। क्या कहना? लाख धुलवा दो इन्हें सोने के पानी में, मगर लाख धुलवा दो इन्हें लाख धुलवा दो इन्हें सोने के पानी में, मगर खोटे सिक्के किसी सूरत नहीं बोला करते, कोई मौसम हो कभी लब नहीं। मैं गीत पढ़ दो, गीत के लिए फरमाइश है ना आसिफ। आइए, सामीन की ख्वाहिश और फरमाइश है कि आप लोग इतना खामोश हैं से नवाजें कि कुछ पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हो रही है।
आप लोग थोड़ा सा जुड़ जाए थोड़ी देर के लिए तो। नहीं नहीं, सब बहुत जिंदा दिल लोग हैं, आप घबराइए नहीं। काफी देर से नहीं, आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, लोग खुद ही जुड़ जाएंगे जी। तवज्जो चाहूँगा आप हजरात, थोड़ी देर के लिए बस थोड़ा सा माहौल बनाने दोस्तों। इश्क नहीं आसान सनम, 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 धीरे धीरे ये ले लेगा एक दिन तेरी जान सनम, इश्क नहीं आसान। शुक्रिया हज़रात, बहुत अच्छे भाई, वाह। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। इश्क नहीं आसान सनम, इश्क नहीं आसान सनम, धीरे धीरे ये ले लेगा एक दिन तेरी जान सनम, इश्क नहीं आसान सनम, इश्क नहीं आसान सनम। बहुत अच्छे भाई। दर्द भी है तन्हाई है, इश्क बड़ा हर जाई है। बहुत अच्छे, वाह। दर्द भी है तन्हाई है, इश्क बड़ा हर जाई है, इश्क वो दरिया है कि जिसके साहिल पर गहराई है, इश्क वो दरिया है कि जिसके साहिल पर गहराई है, इस दरिया में डूब गए हैं, इस दरिया में डूब गए हैं पीर वली सुल्तान सनम, इश्क नहीं आसान सनम, इश्क नहीं आसान सनम, धीरे धीरे ये ले लेगा एक दिन तेरी जान सनम, इश्क नहीं आसान। और देखें कौन यहाँ आबाद हुए, इश्क में सब बर्बाद हुए, कौन यहाँ आबाद हुए, इश्क में सब बर्बाद हुए, इश्क में जान गवाई सबने, क्या मजनू फरहाद हुए, इश्क में जान गवाई सबने, क्या मजनू फरहाद हुए। छोड़ दे इश्क की बातें करना, छोड़ दे इश्क की बातें करना, कहना मेरा मान सनम, इश्क नहीं आसान सनम, इश्क नहीं आसान सनम। और बंद क्या जरा, क्या अपने बेगाने हैं, इश्क में सब दीवाने हैं, क्या अपने बेगाने हैं, इश्क में सब दीवाने हैं, इश्क में पीने वालों के तो तारो रसन में खाने हैं, इश्क में पीने वालों के तो दारो रसन में खाने हैं, इश्क में जीने वाले खुद से, इश्क में जीने वाले खुद से रहते हैं अनजान सनम, इश्क नहीं आसान सनम, इश्क नहीं आसान सनम, धीरे धीरे ये ले लेगा एक दिन तेरी जान सनम, इश्क
नहीं आसान सनम, इश्क नहीं आसान सनम। और आखिरी गीत, आखिरी बंद पेश खिदमत है। इश्क इबादत, इश्क खुदा, इश्क का मरकज़ अर्शे औला। इश्क इबादत, इश्क खुदा, इश्क का मरकज़ अर्शे औला। इश्क की ये मेराज तो देखो, बंदा जाके रब से मिला। इश्क की ये मेराज तो देखो, बंदा जाके रब से मिला। इश्क के दम से है पाकीज़ा, इश्क के दम से है पाकीज़ा, कल्ब जिगर ईमान सनम। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने हैं। नई उम्र के शायर जनाब आसिफ अख्तर अपने जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी अपने ख़ास अंदाज में अपने गीत से कर रहे थे। जब वो ये मिसरा दोहरा रहे थे कि इश्क नहीं आसान सनम, तो मैं सोच रहा था कि शायर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो नहीं किया है वो भी कहा जाए, और जिसे बहुत मामूली तौर पर जानते हैं उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाए। वो तजर्बात जिनसे वाकिफ़ नहीं हैं उनको इस तरह से बयान किया जाए कि मालूम हो कि इस मैदान के हम खिलाड़ी हैं। ये शायर होने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम ख़यालात की वादियों में वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ अपने कदमों से चल करके पहुँचना मुश्किल हुआ करता है। जनाब आसिफ अख्तर अपने ख़यालात की वादियों में वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक वो खुद पहुँचना चाहते तो नहीं पहुँच सकते थे। नई उम्र है, इस उम्र में इसी तरह के एहसासात और जज्बात को बयान करना ज़रूरी होता है, वरना नई उम्र में बड़े पुख्ता तजर्बात अगर बयान किए जाएं तो फ़ैसला नहीं हो पाता कि ये तजर्बा शायर का है या उसके वालिद का है। मगर आसिफ अख्तर की खूबी ये रही कि जिस उम्र के वो हैं उसी उम्र की गुफ्तगू अपनी शायरी में कर रहे थे, और ख़ास तरीके से नौजवान बड़ा लुत्फ़ हासिल कर रहे थे। अच्छा लगा कि मुशायरा प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू से शुरू हुआ है। मैं अभी 2 दिन पहले दुबई के एक मुशायरे में मुझे तकरीर करनी थी, वहाँ हिंदुस्तान के एम्बेसडर वग़ैरह भी थे, तो मैंने एक ख़ास बात वहाँ ये कहने की कोशिश की थी कि इस वक्त दुनिया में जितनी मोहब्बत, शराफत और तहज़ीब बची है, जितना प्यार बचा हुआ है, उसकी हिफाजत कर लेना ही दानिश्वरों और शायरों की जिम्मेदारी है। तो आज भी हमारे माशरे में जितना प्यार, जितनी मोहब्बत बची हुई है, उसको हम संभाल के रख सकें, यही हमारा सबसे बड़ा कारनामा होगा। और हमारे मुशायरे, हमारी शायरी का अगर ये मकसद हो कि हम बारूद के ढेर पर बैठी हुई इस दुनिया में जितना प्यार, जितनी खुशबू बाकी है, उसे सलामत रख सकें, तो हमारा ये कारनामा होगा। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ आसिफ अख्तर को, गुफ्तगू आगे बढ़ा रहा हूँ। मुशायरे में फहरिस्त जो मेरे हाथ में है उसमें मुकामी भी कई मोतबर शोरा हैं। मैं चाहता हूँ सबसे मुलाकात करते हुए आगे बढ़ें। सबसे पहले मैं जनाब मैकश आज़मी से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तजर्बात और अपने एहसासात को अपनी शायरी के पैकर में पेश करें। जनाब मैकश आज़मी। बिना किसी तमहीद के एक कथा पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। क़यादत मर्तबा दस्तारो अज़मत छीन लेता है, क़यादत मर्तबा दस्तारो अज़मत छीन लेता है। हुकूमत सुर्ख़ रूई जाहो हशमत छीन लेता है। शहादत पाने का जिसको मुँह में जज्बा नहीं होता, शहादत पाने का जिसको मुँह में जज्बा नहीं होता, खुदा उसको मुझसे दुनिया में इज्जत
छीन लेता है, खुदा उस कौम से दुनिया में इज्जत छीन लेता। और एक मतलब एक कथा और पेश कर रहा हूँ। अबू आसिम साहब की हाज़री में मुलाज़ा फरमाया, किसी भी शख्स की बेजा सताइश हम नहीं करते, फ़कीरे वक्त है दौलत की ख्वाहिश हम नहीं करते। किसी भी शख्स की बेजा सताइश हम नहीं करते, फ़कीरे वक्त है दौलत की ख्वाहिश हम नहीं करते। वतन पा जान दे देते हैं जब भी वक्त आता है, वतन पा जान दे देते हैं जब भी वक्त आता है। वतन से प्यार की झूठी नुमाइश हम नहीं करते, वतन से प्यार की झूठी नुमाइश हम नहीं करते। गज़ल का मतलब पेश कर रहा हूँ, हुक्म हुआ है गज़ल का। अभी आसिफ अख्तर साहब पढ़ रहे थे तो मुझे भी आपका टेस्ट मालूम हुआ कि किस तरह का टेस्ट आप रखते हैं। मुलाज़ा फरमाएं रिजवान भाई। अपनी आंखों में बसा ले हमें काजल की तरह, हमें काजल की तरह। अपनी आंखों में बसा ले हमें काजल की तरह, हमें काजल की तरह। अपनी आंखों में बसा ले हमें काजल की तरह, अपनी आंखों में बसा ले हमें काजल की तरह। हम भटकते हैं तेरे शहर में पागल की तरह, पागल की तरह। बहुत अच्छे माइक साहब, क्या करने तेरे शहर में पागल की तरह, पागल की तरह। बहुत अच्छे भाई। रोज क्यों शाम ढले रात के सन्नाटे में, सन्नाटे में। रोज क्यों शाम ढले रात के सन्नाटे में, रोज क्यों शाम ढले रात के सन्नाटे में। तेरी यादें भी खनक जाती है पायल की तरह, पायल की तरह। तेरी यादें भी खनक जाती है पायल की तरह, पायल की तरह। और शेर समात फरमाए, मोहब्बत करने वालों की नजर है बगैर तमहीद के। वादा मिलने का है कल का मगर जाने गजल, मगर जाने गजल। वाह। वादा मिलने का है कल का मगर जाने गजल, वादा मिलने का है कल का मगर जाने गजल। तुम कर जाएगा मालूम है फिर कल की तरह, फिर कल की तरह। तुम कर जाएगा मालूम है फिर कल की तरह, फिर कल की तरह। और एक शेर समाप्त फरमाएं। कोई दर कोई नगर कोई न मस्कन अपना, मस्कन अपना। कोई दर कोई नगर कोई न मस्कन अपना, कोई दर कोई नगर कोई न मस्कन अपना। हम है आवारा तेरे प्यार में बादल की तरह, बादल की तरह। हम है आवारा तेरे प्यार में बादल की तरह, बादल की तरह। एक मुद्दत हुई है वाक़या गुजरे लेकिन, गुजरे लेकिन। एक मुद्दत हुई है वाक़या गुजरे
संदल की तरह, संदल की तरह खत महकता है तेरा आज भी संदल की तरह, संदल की तरह। आखिर शेर पेश कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कोई खामोश नहीं रहेगा। जब कभी सर्द हवा आती है तो तेरा बदन, तेरा बदन, जब कभी सर्द हवा आती है तो तेरा बदन, जब कभी सर्द हवा आती है तो तेरा बदन ओढ़ लेता है मुझे रात में कंबल की तरह। वाह 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 भाई मैकस साहब। मैकस साहब से पहले आसिफ अख्तर अपना कलाम सुना रहे थे। मैंने उस वक्त ये कहा था कि शायर होने का एक फ़ायदा ये है कि जो न किया जाए वो भी कहा जाए, लेकिन शायर होने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो कुछ किया जाए सब कह दिया जाए और बहुत ही बेबाकी से कह दिया जाए। मैं आपको ये बताऊं कि समाज के दूसरे लोगों में और शायर में यही एक बुनियादी फ़र्क है कि समाज के दूसरे लोग अपनी कमज़ोरियों को हमेशा छुपाते हैं। सिर्फ शायर एक ऐसा शख्स होता है जो अपनी कमज़ोरियों और अपने अयूब को भी अलल ऐलान बयान करता है और उसमें खुशी महसूस करता है। मैं मुशायरों में अक्सर कहा करता हूँ कि ज़िंदगी में चाहे सच बोला जाए या न बोला जाए, मगर शायरी में सच बोलना ज़रूरी है ताकि आने वाली नस्लें हम पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम न लगा सकें। मैकस साहब की ये खूबी थी कि जो कुछ भी करते रहे उसे बयान करने का हौसला भी उनमें था। मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ इस जुर्रते रिंदाना को। मैकस साहब के इस कलाम के बाद दोस्तों एक बहुत प्यारा नाम, बहुत खूबसूरत आवाज़, बड़ी नगमा भरी आवाज़, अच्छा तरन्नुम, बुरहानपुर जो सदियों से इल्म अदब और तहज़ीब की सरज़मीन है, जहाँ न जाने कितने उलमाए किराम, कितने दानिश्वर, कितने अदीब पैदा हो चुके हैं। एक तारीख़ी सरज़मीन वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं जनाब जमील अंसारी साहब। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ बुरहानपुर की शेरी फ़ज़ा की नुमाइंदगी के लिए जमील अंसारी। हज़रात गिरामी, मुशायरा कहीं पूरा माशूक की नज़र न हो जाए। आइए हम अपने घर से बात शुरू करते हैं और अपने उस्तादान की मौजूदगी में चंद शेर सुनाने की जुर्रत कर रहा हूँ। आज उनके साथ इस मुशायरे में शरीक हुआ हूँ। मैं अपने लिए आज बहुत बड़ा दिन मानता हूँ। उस्ताद जमील इरशाद मतलब मुलाज़ा करें। जीते जी माँ बाप से जिसने किनारा कर लिया, जीते जी माँ बाप से जिसने किनारा कर लिया, जीते जी माँ बाप से जिसने किनारा कर लिया, आखिरत का अपने हाथों से खसारा कर लिया। अच्छे भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने। जीते जी माँ बाप से जिसने किनारा कर लिया,
कई मानों में आज अपना सफ़र तय कर रही है। शेर पेश कर रहा हूँ रंजिशें इतनी बढ़ी हैं, रंजिशें इतनी बढ़ी, खून के रिश्तों के बीच बहुत खूब। रंजिशें इतनी बढ़ी हैं, खून के रिश्तों के बीच। हमने तन्हाई को जीने का सहारा कर। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने जमील साहब। हमने तन्हाई, शुक्रिया हज़रात, को जीने का सहारा कर लिया। और हज़रात मेरे साथ अब गुजरात चले कि जब वहाँ पर तमाम मामलात हुए, उसी बीच इलेक्शन भी करा लिया गया। मुलाज़ा करें से इनायत। हमने तन्हाई को जीने का सहारा कर लिया। जालिमों ने खून की होली भी खेली धूम से। जालिमों ने खून की होली भी खेली धूम से। रहनुमाओं ने भी अपना काम सारा कर लिया। बहुत अच्छे जमील साहब, वाह। माँ बाप से जिसने किनारा कर लिया। मकसद पेश कर रहा हूँ हज़रात, इस उम्मीद के साथ कि मेरे साथ तमाम लोग जुड़ जाएंगे, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला अज़ीम कोई भी खामोश नहीं रहेगा। मुलाज़ा करें, आपकी बात है हज़रात, मुलाज़ा करें। हाँ भाई इनायत। ज़ालिमों ने खून की होली भी खेली धूम से। मक्ता पेश करो। इल्म की दौलत दिलाने के लिए मुझको जमील, इल्म की दौलत दिलाने के लिए मुझको जमील। सूखे टुकड़ों पर मेरी माँ ने गुजारा कर लिया। बहुत अच्छे भाई जमील साहब, क्या कहने हैं। गज़ल में इखलाकी जिम्मेदारियों का इजहार जनाब जमील अंसारी बुरहानपुरी कर रहे थे। जीते जी माँ बाप से जिसने किनारा कर लिया, आखिरत का उसने अपनी खुद खसारा कर लिया। एक ऐसा शेर जिसमें माँ बाप की अहमियत, उनकी इज़्ज़त, उनका एहतराम और उनकी अज़मत का तज़किरा था। शायरी के वसीले से सिर्फ मोहब्बत और प्यार, हिजर और विसाल की गुफ्तगू नहीं, बल्कि हमारी घरेलू ज़िंदगी में अखलाकी इक़दार का क्या एहतराम है, उसका तज़किरा भी शायरी के वसीले से अवाम तक करने का जनाब जमील अंसारी ने शरफ़ हासिल किया। वो शेर पढ़ रहे थे, मुझे किसी शायर का एक शेर याद आ रहा था कि बाप अपने बेटे से कहता है कि मुझको घर से निकाल मत बेटे, मुझको घर से निकाल मत बेटे, तेरे बचपन की मैं सवारी हूँ।
تو ہماری غزل کی یہ خوبی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی موضوع ایسا نہیں ہے جس کو غزل نے اپنے دامن میں گل بوٹے کی طرح ٹانکا نہ ہو. یہ غزل کا حسن اور اس کا کارنامہ ہے. میں جمیل انصاری کے بعد اب پھر بنگال کی سرزمین کے ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں جہاں ٹیگور کا وطن ہے، جو بنگال نظر الاسلام کی سرزمین ہے، اعزاز افضل کی دھرتی ہے، حبیب ہاشمی کا دیار ہے. وہاں سے ایک شاعر شہاب الدین فیض نام کے آئے ہیں، بہت ہی باصلاحیت شاعر، بڑی اچھی آواز، بڑا اچھا ترنم، زندگی کے تجربات اور دھوپ چھاؤں کو غزل بنانے کا ہنر جانتے ہیں. شہاب الدین فیض سنجیدگی سے سنیے گا، یقیناً کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں. مائک پر شہاب الدین فیض، کلکتہ کے مہمان شاعر. غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا. دیکھیے گا ڈاکٹر. وہ بولتا نہیں آخر اسے ہوا کیا ہے. بہت اچھے بھائی. وہ بولتا نہیں آخر اسے ہوا کیا ہے. وہ بولتا نہیں، وہ بولتا نہیں آخر اسے ہوا کیا ہے. ہوں کاش مکش میں کہ اس درد کی دوا میں کہ اس درد کی دوا کیا ہے. اور تجمین کے ساتھ دوسرا مطلب پیش کر رہا ہوں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ یہ ہوا کیا ہے. توجہ چاہوں گا عنایت. ہر کی بلا سے مصیبت سے وہ رہا محفوظ. ہر کی بلا سے مصیبت سے وہ ماں باپ کی دعا کیا ہے. بہت اچھے بھائی. واہ واہ. وہ جس نے جانا کی ہر کی بلا سے مصیبت سے وہ کی دعا کیا
مرضی خدا کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ وہ جانتا ہی نہیں مرضی خدا کیا ہے۔ اور اس شعر پہ خاص کر توجہ چاہوں گا جی، نہ ہو سکے گا کبھی مجھ سے کار ناجائز، توجہ چاہوں گا حضور، نہ ہو سکے گا کبھی مجھ سے کار ناجائز، میں جانتا ہوں برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے، میں جانتا ہوں برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے، وہ بولتا نہیں۔ اور غزل کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں جو عنایت ارشاد۔ دیا تھا جس نے سبھی کچھ اسی نے چھین لیا، بہت اچھے، واہ واہ۔ دیا تھا جس نے سبھی کچھ اسی نے چھین لیا، بتاؤ دوستو اس میں میری خطا کیا ہے، بہت اچھے، واہ واہ۔ بتاؤ دوستو اس میں میری خطا کیا ہے۔ اور غزل کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں جو توجہ چاہوں گا، عنایت۔ یہ ماں نے کہہ دیا بیٹے کو اپنے لپٹا کر، یہ ماں نے کہہ دیا بیٹے کو اپنے لپٹا کر، میرا سہارا جہاں میں تیرے سوا کیا ہے، میرا سہارا جہاں میں تیرے سوا کیا ہے۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں حضور، عنایت۔ اے فیض خود کو بچاتی رہو برائی سے، اے فیض خود کو بچاتی رہو برائی سے، سمجھ میں آئے گا ایک روز یہ دنیا کیا ہے، سمجھ میں آئے گا ایک روز یہ دنیا کیا ہے، وہ جس نے جانا کہ ماں باپ کی دعا دوستو مائک پر ابھی جناب شہاب الدین فیض اپنے کلام سے نواز رہے تھے،
इतना बड़ा मजमा जिस सुकून और संजीदगी से उनकी शायरी को सुन रहा था, मैं इस नफ्सियात को समझने की कोशिश कर रहा था कि सनती शहर उमूमन महाजिरों की आबादी का शहर हुआ करते हैं। लोग अपने माँ बाप से अक्सर दूर होते हैं, बहुत बहुत दिनों के बाद मुलाकातें होती हैं। लिहाजा ऐसे मजमों में अगर वो अशार पढ़े जाएं जिसमें माँ बाप का तज़किरा हो, घरेलू ज़िंदगी के तक़द्दुस की कहानी बयान हो, तो यकीनन आदमी संजीदा हो जाता है और इज़्ज़त से सुनता है। शहाबुद्दीन फैज़ साहब के इस कलाम के बाद मैं एक ऐसी शख्सियत का तारुफ कराना चाहता हूँ जिसके नाम लेने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मुशायरा कमेटी के ज़िम्मेदारों में कुछ मोहतरम शख्सियतें हैं जिन्होंने इतनी बड़ी शेरी और अदबी महफिल का इनेकाद किया है। वो शख्सियतें हैं जनाब राशिद सिद्दीकी, जनाब अबू ज़र ख़ान, जनाब बदिउज़्ज़मा ख़ान, डॉक्टर तारिक साहब और आमिर शेख साहब। मगर इन शख्सियतों को अगर एक मोहतरम शख्सियत का ताउन न हासिल होता तो शायद ये लोग इतनी बड़ी महफिल सजाने में इतना कामयाब न होते। और वो शख्सियत है सहर आज़मी की, जो गुज़िश्ता चौथाई सदी से ज़्यादा अरसे से भिवंडी की इल्मी, अदबी और तहज़ीबी फ़ज़ा को खुशगवार बनाने में, उसकी अदबियत में इजाफ़ा करने में अपना नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छे लहजे के शायर, बड़े लतीफ़ और पाकीज़ा एहसासात के तर्जुमान जनाब सहर आज़मी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाज़ें। अर्ज़ किया है कि लबों पे अपने कैनात का नूर रखता हूँ। क्या कहने? लबों पे अपने कैनात का नूर रखता हूँ, मैं अपनी प्यास को दरिया से दूर रखता हूँ। क्या कहने? लबों पे अपने कैनात का नूर रखता हूँ, मैं अपनी प्यास को दरिया से दूर रखता हूँ। और है ये भी सच के माफ़ी उसी से चाहूँगा। क्या कहने? है ये भी सच के माफ़ी उसी से चाहूँगा, है ये भी हक के खताओं कसूर रखता हूँ। वाह वाह, ये भी हक के खताओं कसूर रखता हूँ। और दो शेर दूसरी गज़ल के समाज फरमाए कि बड़े खुलूस से मिलते हैं लोग आपस में, बड़े खुलूस से मिलते हैं लोग आपस में, दिलों में अब भी मगर भेदभाव बाकी है। वाह वाह, दिलों में अब भी मगर भेदभाव बाकी है। और एक शेर बतौर खास अर्ज कर रहा हूँ कि ये जिंदगी कोई मंजिल नहीं है, रास्ता है। ये जिंदगी कोई मंजिल नहीं है, रास्ता है, अभी तो रोजे जज़ा का पड़ाव बाकी है। ये जिंदगी कोई मंजिल नहीं है, रास्ता है, अभी तो रोजे जज़ा का पड़ाव बाकी है। और ये गज़ल का मतलब दो तीन शेर और फरमाए कि अनवर भाई देखिएगा कि किसी से कोई शिकायत कभी न की मैंने, किसी से कोई शिकायत कभी न की, किसी से कोई शिकायत कभी न की मैंने, और तेरा वक़ार बचाया है मुफलिसी मैंने। वाह वाह, किसी से कोई शिकायत कभी न की मैंने, तेरा वक़ार बचाया है मुफलिसी मैंने। और तमाम उम्र मसाइल की भीड़ में रहकर तेरा भी कर्ज चुकाया है जिंदगी मैंने। तमाम उम्र मसाइल की भीड़ में रहकर तेरा भी कर्ज चुकाया है जिंदगी मैंने। और मेरे खुदा मेरे सजदों की आबरू रखना, मेरे खुदा मेरे सजदों की आबरू रखना, तेरी रजा के लिए की है बंदगी मैंने, तेरी रजा के लिए की है बंदगी मैंने। और गीत सुन लीजिए एक दो बंद, छुट्टी भी नहीं है। सवाल फरमाए, व्याकुल मनवा चुपके चुपके खून के आंसू रोए, मैं कैसे गीत लिखूं। व्याकुल मनवा चुपके चुपके खून के आंसू रोए, मैं कैसे गीत लिखूं। अपने वतन से गीत का मौसम जैसे रूठा होए, मैं कैसे गीत लिखूं।
निसार भाई, क्या कहें। मजलूमों के सीने हैं और बंदूकों की गोली, इंसानों के खून से जालिम खेल रहे हैं होली। रोज यही एक हंगामा है, रोज ही ऐसा होए मैं कैसे गीत लिखूं। बहुत अच्छे। रोज ये अपन देखिएगा, बस्ती बस्ती सन्नाटा है, जंगल जंगल शोर, फिरका परस्ती की अफवाहें फैली हैं चोर, ज़हनों पर है खौफ के साए, जाने कब क्या होए मैं कैसे गीत लिखूं। बहुत अच्छे। जागल मनवा चुपके चुपके खून के आंसू रोए मैं। और एक बंद हासिल भाई, हाँ, इनायत इरशाद। मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश है आम, नेता अत्याचार कराएं, जनता हो बदनाम। क्या कहने वाह। नफरत के छाए हैं बादल, हर सू चर्चा होए मैं कैसे गीत लिखूं। और आखिरी बंद, स्मगलिंग काला बाजारी, स्मगलिंग काला बाजारी और जिस्मों का व्यापार, अगवा लूट खसूट का देखो गर्म हुआ बाजार, नकली नोटों की बारिश में असली सिक्का रोए मैं कैसे गीत लिखूं। शुक्रिया। बहुत अच्छे। मोहतरम सहर आज़मी साहब गीत ज़रूर सुना रहे थे, लेकिन अपने दिलो जिगर के ख्यालों का उसमें तज़किरा कर रहे थे। अपने देखे हुए ख्वाबों की ताबीरें न हासिल हो सकीं, इस गम और इस दुख का इजहार कर रहे थे। मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसान और इंसानियत पर जो कुछ गुजर रही है, उस हकीकत को आशिकार कर रहे थे। एक दर्द था जो सिमट गया था उनके गीत के अंदर, और इससे महसूस हुआ कि उन्होंने अपने तजर्बात और मुशाहदात की आँच से इस गीत को गर्मी और हरारत दी है। ये उनका फ़न था। दोस्तों, कई शोरा को आप सुन चुके, डाइस पर मुख्तलिफ शायरात भी बैठी हुई हैं। आप सोच रहे हैं कि आखिर उनकी तरफ आपको कब मैं मुखातिब होने के लिए आपसे गुजारिश करूं। यकीनन आपका सोचना सही है। हमारी फहरिस्त में कई शायरात हैं, मगर एक शायरा दीप्ति मिश्रा साहिबा हैं। उन्हें तीसरी मर्तबा मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ, और जब मैंने उन्हें सुना है, उनके जज्बात की सदाकत का मुझे कायल होना पड़ा कि वो जो कुछ भी सोचती हैं उसे जब जज्बा बनाती हैं तो वो जज्बा बड़ा सच्चा और बड़ा प्यारा होता है। मैं मोहतरमा दीप्ति मिश्रा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें कि रंग पैराहन का, खुशबू जुल्फ लहराने का नाम, मौसम गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। आइए मोहतरमा दीप्ति मिश्रा साहबा। यार, इतनी जल्दी आप लोग बेकाबू क्यों हो रहे हैं? आखिर क्या हो गया?
इनायत इरशाद। गजल पेश कर रही हूँ। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे दीप्ति साहिबा, क्या कहना। बेहद बेचैनी है लेकिन मकसद जाहिर कुछ भी नहीं। पाना खोना हंसना रोना क्या है आखिर कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे। अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना हिस्सा है। बहुत खूब, वाह वाह। अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना हिस्सा है। जिस्म के खातिर लाखों सामा, रूह के खातिर कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह। मैं फिर सहमत होगी दीप्ति साहिबा, क्या कहना। अपनी अपनी किस्मत है और अपना अपना हिस्सा है। जिस्म के खातिर लाखों सामा, रूह की खातिर बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। उसकी बाजी, उसके मोहरे, उसकी चालें, उसकी जीत। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। उसकी बाजी, उसके मोहरे, उसकी चालें, उसकी जीत। उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर कुछ भी नहीं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। उसकी बाजी, उसके मोहरे, उसकी चालें, उसकी जीत। उसके आगे सारे कादिर माहिर शातिर कुछ भी नहीं। और उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है। गर वो है तो भीतर ही है वरना बाहर। वाह 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 वाह। उसका होना या ना होना खुद में जाहिर होता है। गर वो है तो भीतर ही है वरना बाहर कुछ भी नहीं। दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। दुनिया से जो पाया उसने दुनिया ही को सौंप दिया। गज़लें नज़्में दुनिया की हैं, क्या है शायर कुछ। वाह 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 वाह। दुनिया से जो पाया उसने बहुत अच्छे, दुनिया ही को सौंप दिया। गज़लें नज़्में दुनिया की ही हैं, क्या है शायर कुछ भी नहीं। बहुत अच्छे, वाह वाह। नहीं कुछ और सुनाइए। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। क्या कहने, वाह वाह। वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्म रिवाजों से बगावत है तो है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो